ہم 2 پروگرام کو دیکھنے کے بعد باہر نکلیں تو انصاف بیٹنگ میں ایک بڑا دلچسپ حال جو کا پروگرام چل رہا ہے، کچھ اس کی جھلک لیتے ہیں پھر باہر نکلیں گے۔ ماشاء اللہ وضاحت آپ نے خوب کر دی ہے۔ اس میں ایک چیز کو دیکھیں، اسلام جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ نے دین فطرت قرار دیا ہے، اور اللہ نے آغاز میں قرآن کریم میں یہ محفوظ کر کے بتا دیا کہ میت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جہاں ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، اب قتل کرنے کے بعد اس لاش کو کیا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ نے جو پرندہ تھا بھیجا ہے، اس نے پھر زمین کھود کے باقاعدہ دوسرے پرندہ جو پڑا تھا اس کو اس مٹی میں دبایا ہے، اس کو دیکھ کے پھر آگے اس نے پھر اپنے بھائی کی لاش کو دکھایا ہے۔ تو یہ جتنا بھی سلسلہ ہے اسلام میں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع سے انسانی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ بے شک اگر وہ جسم سے روح نکل گئی تو اس جسم کا بھی ایک اکرام ہے، ایک عزت ہے، اس لیے پھر ہم اس کو اس حساب سے اللہ کہتا ہے میں نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور مٹی میں دوبارہ لٹا دوں گا، تو اللہ نے بتا دیا کیسے مٹی میں لٹانا ہے، ہم وہی کو دفن کرتے ہیں۔ دوسرا، اسلام میں جتنے بھی مسائل ہیں یا احکام ہیں ان کے پیچھے ایک فلسفی بھی ہے۔ ہم میت کو وقار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، مٹی میں ڈالتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سپرد ہے، اور یہ دعا ہوتی ہے اللہ اس کو آگے کو عزت سے اکرام سے احسان کا سلوک کرنا۔ اب جب آپ خود اس کو جلا رہے ہو، آگ کا عذاب اس کی باڈی کو دے رہے ہو، تو آپ اللہ سے کیا کہتے ہو کہ آپ تو اس کے جو اس کا حصہ رہ گیا اس کے ساتھ سلوک دوزخ والا کر رہے ہو، اور کہتے ہو کہ اللہ تو اس کو دوسری طرف دے جا، تو یہ تضاد بن جاتا ہے آپ کے عمل اور آپ کی دعا میں۔ باقی ابن رجا صاحب نے ایسے فرمایا کہ وبا کی صورت میں وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اکرام یہی ہے جو قرآن سکھاتا ہے آپ اس کو دفن کریں۔ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گنہگاروں کو خدا کا لقاء نصیب نہیں ہوگی، اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے حضور پیش کیے جائیں گے اور ان سے سوال و جواب بھی ہوگا کہ آپ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، یہ بھی کئی جگہ ذکر ملتا ہے۔ تو وہ لقاء تو ہو گئی جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں یہ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ارب انسان دنیا میں گزرے جنہوں نے جو خدا کی ہستی پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، اور پھر اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں مشرک جن کی تعداد اہل کتاب اور اس مسلمانوں سے زیادہ ہے، پھر عیسائی ہیں ان کی تعداد بھی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے، پھر آگے آ جاتے ہیں مسلمانوں کے فرقے ہیں مسلم، اور یہ سارا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ جماعت احمدیہ ہے ہمارے طرف سے جو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے یہ فرقہ ہے جو خدا کی طرف سے جن کو ناجی کہا گیا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ظہور و رحیمیت ہے
क्या ये सारे लोग जो हैं ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे, क्या होगा? ये इंसानी इतने इंसान जो हैं खुदा ताला के हुजूर, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, वो अल्लाह ताला इनसे रहमत का सलूक फरमाएगा या क्या ये सारे सजा के मुस्तहिक ठहरेंगे? जी, आपका पहला ये सवाल था कि खुदा ताला की लिखा के हवाले से कि जो काफिर है उनको निकाह नसीब नहीं होगी, यही है ना? तो और दूसरी तरफ वो उनको अल्लाह के पेश भी किया जाएगा तो निकाह होगा। यही इसी बात की तजाद के तौर पर पेश कर रहे हैं ना आप? मैं दुरुस्त समझाऊँ? हाँ जी, बात यह है कि आप देखते हैं अदालतों में एक तरफ इस्तिगासा भी पेश होता है और मुजरिम भी पेश होता है कि नहीं? तो मुजरिम की क्या हालत होती है और इस्तिगासे वाले की क्या हालत होती है? आप उनको दोनों को बराबर समझते हैं? तो यही वो जब काफिर पेश किए जाएंगे तो वो मुजरिम की हैसियत से पेश किए जाएंगे, वो निकाह की खातिर नहीं होगा। ठीक है? और दूसरी बात आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, बाकी जो उसके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम को एक अस्पताल के तौर पर करार दिया है। जिस तरह हॉस्पिटल में एक मरीज़ को दाखिल किया जाता है और वो उसको उस वक्त तक वहाँ रखा जाता है जब तक उसकी सेहत नहीं होती, उसका इलाज नहीं होता। उसके बाद उसमें से उसको निकाल दिया जाता है। और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जहन्नम पर एक वक्त आएगा जब उसकी दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो हवा की वजह से खटखटाती फिरती होंगी। मुराद यह है कि वहाँ पे कोई नहीं होगा। और तीसरी बात एक दिलचस्प ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपनी किताब में लिखा है कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारसी ज़ुबान में एक इलाम हुआ और वो इलाम ये है कि मुश्तिक खाक रात न बख्शम चेपुना कि खाक की इस मुट्ठी को अगर मैं ना बख्शूं तो क्या करूं? तो खुदा ताला की तो ये कैफियत है। सब पहले सूद के बारे में बात हो रही थी। आजकल जो रवायात चली है या काफ़ी देर से पिछली बार से बहुत हद के चल पड़ी है। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं जर्मनी की एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी रह रहा होता है, उसको एक तरफ से सूरत मिलती है कि ये कार खरीद लें। उस आदमी की इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपना कार उस कीमत में खरीद ले, वो फिर बैंक का सहारा लेता है। इसमें आपकी क्या राय है? सूद की रकम पर घर लेने का सवाल है, यही है ना? तो इस बारे में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ ने गालिबन खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह ने ये वज़ाहत फरमाई थी कि अपने रहने के लिए जो आप घर लेते हैं उसकी इजाज़त है। और उसके पीछे फलसफा ये था कि आप एक किराए के घर में रहते हैं और किराए की रकम 1100-1200 देते हैं और वही जो रकम है किराए की वो गोया कि किसकी सूरत में आप दे रहे हैं थोड़ा बहुत माइनस प्लस करके। तो इस वजह से कि वो एक किस्म का किराया ही आपका जा रहा है जो कि आपने देना ही देना है।
सूरत में आपको इजाज़त है एक मकान की हद तक, जहाँ तक मेरा इल्म है, एक मकान की हद तक उन्होंने इजाज़त दी थी जो आपकी जेन्युइन ज़रूरत है। और उसकी वजह भी यही है कि आपने उसके यही समझे कि आप किराया देंगे। बाकी इससे ज़्यादा जो है वो हमारा की इसके साथ साथ फिर ज़रूरियात के जो आपने बात की है, साथ की तो गाड़ी भी आ जाती है, फिर बच्चे आगे पढ़ना चाहते हो कि लैपटॉप भी होना चाहिए, घर की डेकोरेशन के बारे में भी ऐसे मौलाना तनवीर साहब ने आपको बड़ी वजाहत से शुरू में समझाया था और उसमें ये बात उससे मुतरशी हो रही है कि ये जो ज़रूरियात है और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इनको बढ़ाते जाएंगे तो ये ज़रूरियात की हदूद में दाखिल होती चली जाएगी और इनकी कोई लिमिट नहीं है। और मैंने आपको अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उस पर अगर रहेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अपने वसाइल के मुताबिक, अपने ज़राए के मुताबिक अपने हालात को बनाएं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पास कौन सा लैपटॉप था? हुजूर ने हमारे लैपटॉपों से करोड़ों दर्जे ज़्यादा काम किया है अगर इसका मुकाबला करिए आप। जिसने पढ़ना है, जिसके उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कर्जे पर सूद पर लैपटॉप लेकर पढ़े तो फिर ही पढ़ सकता है। ठीक है, आपके वसाइल हैं तो आप जरूर लें। ये बात कहने वाला था कि इस तरह के जो मामला हैं, मेरा ख्याल है जमात का कोई ऐसा छोटा सा कमेटी बनाई जाए कि कौन कौन से मामला है जो के बगैर कोई काम नहीं है, हम मिसालें देते हैं पूरी की इसके लिए आप अपनी तजवीज़ जो है जी और वकील साहब को भिजवा दें, ये जी। फौरन नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं।